Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Manpua welcomes you to online education. Okay, so students of class 6th, today we are going to learn lesson number 1, that is who did Patrick's homework, which is already written over here. Who did Patrick's homework? So students, today I am going to explain you the lesson, and based on that we prepare question and answers. Okay, so I am explaining the lesson which is given on page number 7 of your textbook, that is you already have. Okay, so I am reading the chapter. Now see, Patrick never did homework, too boring, he said. That means Patrick was not interested to perform homework. He says it's too boring to perform a homework. Students, we know that it's a student nature that students are not just like to complete their homework, means they are just they are not interested in doing the homework. So same with the Patrick over here. Patrick was a boy and he is studying in a school, but he did not do homework. Why? Because he said it's too boring. Homework, to perform a homework, it's too boring for Patrick. यानी कि पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. What he is just doing then, he played hockey and basketball and Nintendo instead. Apart from homework, completion of homework, what he is going to do is, he is always going to play hockey and basketball and Nintendo. Nintendo is a video game. Nintendo is a video game. It's a video game. So he is just playing hockey, basketball and Nintendo. Then his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. That means teachers always going to speak that, Patrick, if you not learn, then you will be a illiterate person one day. Then यानी कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम बेकार हो जाओगे, तुम अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे. उसके लिए तुम्हें you have to work your school work, homework. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. Sometimes he feels that कि उसे बिल्कुल होमवर्क करने का बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा था, लेकिन हम कर भी क्या सकता था वो. He hated homework. Why? Because उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. One day Patrick found that his cat means एक बिल्ली, playing with a little doll, एक खिलौने के साथ वह अपने मुंह में जकड़े हुए खेल रही थी. Then to his surprise it wasn't doll at all but a man of the tiniest size. लेकिन वो जो पैट्रिक है ने देखा कि जो उसकी बिल्ली यानी केट जो है वह खेल रही है, बट वैसा नहीं था. एक्चुअली वह कोई ऐसा डोल यानी कि कोई खिलौना या गुड़िया नहीं थी, बट एक्चुअली इट्स अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज. मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज. मैन ऑफ टाइनिएस्ट साइज यानी कि एक छोटा सा आदमी का पुतला. वी कैन से एन एल्फ. वी कैन से एन एल्फ. We will see further on. Then he had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. He yelled, means he shouted, save me, don't give me back to the cat. I grant you a wish, I promise you that. Now there is man of tiniest size, means it's not a doll, it's a man of, यानी कि एक छोटा सा आदमी का एक पुतला था, वो चिल्ला रहा था, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे मेरी मदद करो. क्यों मदद करो? क्योंकि मुझे अभी ये केट को यानी कि ये बिल्ली को मुझे सौंप मत देना. क्यों सौंप मत देना? बिकॉज वरना वो मुझे खा जाएगा. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसने क्या बोला छोटे से आदमी ने?
that I will grant you a wish, यानी कि I will grant you a wish, यानी कि मैं एक तुम्हें इच्छा, तुम्हारी कोई भी एक ऐसी इच्छा होगी वो मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा। I promise you that, यानी कि ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसा करके वो जो मैन विथ टाइनीएस्ट साइज, यानी छोटा सा जो एक आदमी का पुतला था, उसने ऐसा पैट्रिक को बोला कि पैट्रिक तुम ये मुझे बिल्ली को मत सौंपना, मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा यानी कि ख्वाहिश जो है वो मैं पूरी कर दूंगा, यानी आई विल ग्रांट यू अ विश एंड दैट इज प्रॉमिस बाय माय साइड, मेरी तरफ से ये तुम्हें एक प्रॉमिस है। ओके, देन आगे, देन मूव फॉरवर्ड। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was, और इसकी वजह से बस पैट्रिक को ऐसा लगा कि मैं कितना लकी हूँ। Here was the answer to all of his problem, और इसी के साथ यहाँ पर पैट्रिक के सारे जो प्रॉब्लम्स थे होमवर्क नहीं करने के, वो सब के आंसर यहाँ पर पैट्रिक को मिल गए। कैसे मिलते हैं आइए बच्चों देखते हैं आगे। That so he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job I could even get A's, यानी यहाँ पर पैट्रिक ऐसा बोलता है वो टाइनीएस्ट यानी कि वो छोटे से मैन के पुतले को कि अगर तुम मेरा होमवर्क पूरे सेमेस्टर जो 35 दिन का 35 डेज का पूरा सेमेस्टर है, हाउ मेनी डेज ऑफ सेमेस्टर, इट्स ऑफ 35 डेज सेमेस्टर, तो उसमें पैट्रिक ऐसा बोलता है कि तुम अगर तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम मेरी मदद करोगे तो मेरा 35 डेज का स्कूल का सेमेस्टर है, उसमें तुम मुझे क्या करके दिखाओगे, मेरा होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके दिखाओगे। तो एल्फ बोलता है देन दैट लिटिल मैन यानी कि टाइनीएस्ट साइज का जो छोटा सा आदमी था वो बोलता है ओके आई विल डू इट फॉर यू, ऐसा करके वह अग्री करता है पैट्रिक के साथ। देन द टाइनी मैन हाउएवर ट्रू टू हिज वर्ड, यानी कि जो छोटा सा ये जो टाइनी मैन था उसको हम एल्फ भी बोल सकते हैं, मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज वी ऑल्सो कॉल एन एल्फ। एल्फ मीन्स एक जिन, एल्फ मीन एक जिन, यस। तो उसने बोला कि ठीक है, तो वो फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। नाउ वो छोटा सा आदमी द मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज इज अग्रीड और एन एल्फ इज अग्रीड टू हेल्प Patrick. Now what he is going to do is he is completing the homework of Patrick every day, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क जैसे ही उसने प्रॉमिस किया था कि पैट्रिक मैं तुम्हारा होमवर्क हर रोज कंप्लीट करके दिखाऊंगा 35 डेज तक, तो वैसा अपने प्रॉमिस जो है वो शुरू कर दिया और डेली पैट्रिक का जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर रहा था। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन इज, कभी कभी कुछ ऐसा भी हो रहा था कि पैट्रिक को है ना कोई मतलब वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट ही इज यूज्ड टू डू इज ही नीडेड हेल्प एंड ही शाउट हेल्प मी एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसा भी होता था कि पैट्रिक का होमवर्क करते समय एल्फ को बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि ये वर्ड एक्चुअली क्या है या ये वर्ड कौन सा लिखा है क्या है। At that point of time he used to shout help me. At that point of time Patrick have to come to help that elf in whenever it is required, यानी कि जब उसकी जैसे ही वो चिल्लाता था कि हेल्प मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पैट्रिक को उसकी मदद करने के लिए आना पड़ता था। ओके, देन आई डोंट नो दिस वर्ड, देन कभी कभी क्या होता था कि कोई वर्ड वो रीड नहीं कर पाता था और वो पैट्रिक को बोलता था मुझे ये वर्ड के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट पैट्रिक इज यूज्ड टू डू इज ही यूज्ड टू प्रोवाइड डिक्शनरी टू एल्फ, डिक्शनरी टू एल्फ, यानी कि वो क्या करता था एल्फ को डिक्शनरी दे देता था। अगर तुम्हें ये कोई वर्ड पता नहीं है, स्टूडेंट्स हमें मालूम है जब कोई भी वर्ड हमारे लिए नया होता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या करते थे कि डिक्शनरी में से वो वर्ड ढूंढते थे। सम सेम विद द
Patrick and between Elf. Elf don't know the words of Patrick's homework. At that point of time, Patrick used to give dictionary to the Elf. And then when it came to maths, Patrick was out of luck. यानी कि जब मैथ्स का होमवर्क करने की बारी आती थी तब पैट्रिक के दिमाग की बत्ती जो है एकदम से गुल हो जाती थी. क्यों गुल हो जाती थी? बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू परफॉर्म मैथ्स. यानी कि एल्फ को बिल्कुल मैथ्स नहीं आता था. व्हाट आर टेबल्स, यानी कि टेबल्स क्या होते हैं ऐसा करके एल्फ बताता. हमारे को तो एल्फ को यानी कि हमें तो बिल्कुल इन टेबल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये तो बिल्कुल मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ऐसा करके एल्फ है वो पैट्रिक को बता रहा था. एंड आई ऑल्सो डोंट नो हिस्ट्री एंड इंग्लिश ऑल्सो, यानी कि मुझे इंग्लिश और हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है. And then, as a matter of fact, every day in every way that little elf Patrick was working harder than ever, and was it drag he was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. Now, actually क्या था कि अब बार बार एल्फ जो है वो पैट्रिक को सभी सब्जेक्ट के होमवर्क में उसको डिस्टर्ब परेशान कर रहा था कि पैट्रिक मुझे ये मैथ्स नहीं आता, पैट्रिक मुझे मैथ्स के अंदर टेबल्स नहीं आते, मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शंस नहीं आते, मुझे हिस्ट्री का बारे में कुछ मालूम नहीं है, मुझे इंग्लिश के बारे में कुछ मालूम नहीं है. ऐसा करके डे बाय डे एल्फ है वो क्या करता था, पैट्रिक को परेशान किया करता था. तो उसके लिए क्या करना पड़ता था उसको कि बार बार उसकी मदद करने के लिए, एल्फ की मदद करने के लिए पैट्रिक को वापस जाना पड़ता था. तो उसके लिए उसको जागना भी पड़ता था वो होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए. अब क्या होता है, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो. यानी कि लास्ट डे यानी कि कौन सा दिन, 35 डेज खत्म हो गया, 35 का डेज शुरू हो गया था, और दैट इज द लास्ट डे ऑफ सेमेस्टर ऑफ पैट्रिक्स स्कूल. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एल्फ वो क्या था, फ्री टू गो, यानी कि वो अब जा सकता था. क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं 35 डेज तक तुम्हारा होमवर्क करूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा. लेकिन आज तो 35 डेज खत्म हो गए, तो एल्फ वॉज फ्री टू गो. देन एज फॉर होमवर्क there was no more, so he quietly and slowly slipped out of the back door. यानी कि अभी पता है आपको, उसको पता था कि अभी कोई भी होमवर्क रहने वाला नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे घर के पीछे वाले रास्ते से क्या कर गया, वहाँ से घर के बाहर निकल गया. Then Patrick got A's in his classmates were amazed. यानी कि पैट्रिक को सभी सब्जेक्ट में A ग्रेड मिले, और उसके साथ साथ उसके जो क्लासमेट यानी कलीग्स थे, उसके साथ सहपाठी यानी कि पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स थे, वो सभी अमेज्ड हो गए, यानी कि चौंक गए कि पैट्रिक तो होमवर्क भी नहीं करता था, पैट्रिक को स्टडीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं था, और फिर भी वह कैसे सभी सब्जेक्ट के अंदर ए ग्रेड लेके आया. देन हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और टीचर्स ने उसको शाबाशी दी कि वेरी गुड पैट्रिक, आपने पूरा अच्छा मतलब ध्यान दिया और सभी सब्जेक्ट में ए ग्रेड लेके आए. उसके लिए टीचर्स ने भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए. एंड देन यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. यानी पैट्रिक को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि ये जो पूरा है मुझे ए ग्रेड्स मिले हैं, एक्चुअली वो मुझे वो टाइनी मैन मतलब कि वो एन एल्फ, उसकी वजह से मेरे को ये सब अच्छे ए ग्रेड्स मिले हैं. होमवर्क वही करता था, मैं तो करता ही नहीं था. लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर देयर इज वन फैक्ट, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट विथ यू. यानी कि मैं एक सीक्रेट, एक राज की बात बता रहा हूँ कि ये मेरे और आपके बीच में रखना, जस्ट बिटवीन यू एंड मी. इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. यानी एल्फ ने होमवर्क किया ही नहीं था, एक्चुअली होमवर्क करने वाला कौन था, तो पैट्रिक खुद हिमसेल्फ, यानी पैट्रिक खुद ही अपना होमवर्क जो है डेली परफॉर्म करता था. और पैट्रिक ने ही इस प्रकार अपना होमवर्क कंप्लीट करके
सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ए ग्रेड्स मिले, उसको अचीव्ड ए ग्रेड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट्स की, ओवर हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर बट नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म क्वेश्चन आंसर्स। सो बिफोर वी प्रोसीड टू दैट, मैं आपको बताऊँ कि होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट्स लाइफ। दैट मीन्स वी हैव टू कंप्लीट होमवर्क regular the subjects are homework given, and that is the key to success in studies to achieve good grades। यानी कि अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स पाने के लिए हमें डेली अपना गृह कार्य यानी होमवर्क जो मिलता है वो हमें परफॉर्म करना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, बट वी हैव टू परफॉर्म होमवर्क ईच एंड एवरी डे। दैट्स व्हाट आई ऑल्सो want to convey। Okay, now we are moving to question and answers। which is given on page number 11 of your textbook, and question number 1 is, what did Patrick think his cat was playing with? So I am writing question number 1 over here. His cat was playing with, what was it really? What was it really? Actual में वह क्या था? So I am writing the answer. Actually, the Patricks think that his cat was playing with a little doll, but in fact it was a very small sized man, an elf. So Patrick thought that his cat was playing with a little doll, but it was in fact that a very small sized man, an elf. Okay, now question number 2. What did the little man grant Patrick wish? तो पैट्रिक की जो इच्छा थी वो लिटिल मैन ने ग्रांट की। दैट मीन्स आई विल ग्रांट यू अ विश। कौन सी विश थी? दैट इज टू कंप्लीट अ होमवर्क। सो आई एम राइटिंग द आंसर ओवर हियर।
Now see, why did the little man grant Patrick a wish? यानी कि little man ने Patrick को एक wish क्यों grant की? Because Patrick had saved the tiny man's life from cat and he did not handing him back to the cat. Then so he promised, यानी कि so Patrick promised, so elf promised to give fulfill one wish of Patrick. So before we proceed to next questions, the students please note down question number 1 and 2 with answers in your notebook. Okay. Now next question, what was Patrick's wish? Question number 3, what was Patrick's wish? Students, we know कि Patrick की wish क्या थी, that he was not interested to perform homework or to do homework. At that point of time he wished that till my 35 days of semester you complete my homework. So I am writing the answer. Patrick hated doing homework. His great wish was his greatest wish was that the little man should do all his homework till the end of the semester. Now next question number 4. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? कौन से सब्जेक्ट में वो लिटिल मैन को पैट्रिक का होमवर्क परफॉर्म करने में मदद की ज़रूरत रहती थी? तो आई एम राइटिंग आंसर ओवर हियर. द लिटिल मैन नीडेड Patrick's help in mathematics, English and history. These are the subjects in which little man facing problems. So at that point of time he need Patrick's help. Okay, before we proceed to next question, students please note down question number 3 and 4 with answers in your notebook.
Okay. Question number 5. How did Patrick help him? How did Patrick help him? Over here, him means an elf. Then, when elf or tiny man need help of Patrick's, then that point of time, how elf, how Patrick helped him? So I am writing answer. Patrick sat beside little man. Patrick sat beside little man and guided him. And guided him. He brought books from the library and read out to him and read out to him. Now see what Patrick is doing to help an elf. What he used to do is Patrick sat beside the little man, then means he used to sit beside that little man and guided him how to perform the homework, and also brought books from the library to help an elf. Now question number 6, that is last question of the chapter. Who do you think did Patrick's homework? Did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Now at the end I share a secret with you that Patrick was himself used to complete his own homework. So I am writing the answer. It was Patrick himself who actually did all the homework. He had to help the elf. He had to help the elf again and again with guidance and books. With and books. So Patrick himself used to complete his homework, and he is now become a very sincere and good boy, and from that day onwards Patrick used to complete his homework regularly. Now students, before proceed, please note down question number 5 and 6 in your notebook with answers. Okay, and in today's doubt solving session I am going to ask these questions, and I am also cross questioning
on explanation of the chapter, that is who did Patrick's homework. Over here we are completing the session of chapter number 1, that is who did Patrick's homework. Thank you. Jai Swaminarayan.